A very warm welcome to all my viewers. Our topic for this video is spotting errors in English for all competitive exams. But before we go ahead, you need to have a basic knowledge of the basic concepts of parts of speech. There are total 8 parts of speech, which I have explained in full detail with examples in my previous videos. Links to those videos are given in the description below. So I suggest my viewers to check out those videos at least once. For a recap, I'll quickly discuss in short the 8 parts of speech. Understanding the basic concepts of parts of speech makes it very easy to identify the errors in a sentence. एग्ज़ाम में कोई भी सेंटेंस में जब एरर आपको स्पॉट करना है तो उसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका जानना बहुत ज़रूरी है. कमिंग ऑन टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच. पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन. नाउन क्या होता है? व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग और प्लेस. कोई भी पर्सन, थिंग या प्लेस का नाम, इसे हम नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीटा, राहुल, दीज आर नेम्स ऑफ पीपल. टेबल, चेयर, बोर्ड, फैन, बुक्स, पेन, दीज आर नेम्स ऑफ थिंग्स. इंडिया, मुंबई, यूरोप, these are names of places. So names of persons, things और places को हम noun कहते हैं. Next part of speech is pronoun. What is a pronoun? Pronoun is a word which is used instead of a noun. Noun के बदले में जो word हम use करते हैं उनको pronouns बोलते हैं. जैसे कि I, me, you, your, their, his, her, they, them. All these are pronouns जो हम nouns के बदले में use करते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आता है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब और गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन. जो वर्ड नाउन के बारे में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आता है वर्ब. वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एनी काइंड ऑफ एक्शन. वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा किसी ना किसी तरह का कोई एक्शन दिखाता है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब. एडवर्ब इज अ वर्ड दैट शोज हाउ और व्हेन और वेयर और हाउ ऑफन और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज डन. कोई एक्शन कहाँ हुआ है, कितनी बार हुआ है, कब हुआ है, किस हद तक हुआ है, ये सब वर्ड्स बताने वाले वर्ड्स को एडवर्ब कहते हैं. Next part of speech is preposition. Preposition is a word which shows you placement or position of a noun. कोई noun कहाँ है, किस तरह से है, उसका position या placement बताने वाले word को preposition कहते हैं. Next part of speech, conjunction. Conjunction is a word which is used to join two or more words or two or more sentences. दो words को join करने वाला word या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाले वर्ड्स को हम कंजंक्शन कहते हैं. और लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट शोज यू एनी काइंड ऑफ सडन इमोशन और सडन फीलिंग. कोई चीज़, कोई एक्शन, कुछ देख के जब हम सडन इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि सरप्राइज का इमोशन, ओ, जब हम बोलते हैं ओ, जब बोलते हैं अलास, जब खुशी के लिए हम बोलते हैं हुर्रा. सो ऑल दीज आर इंटरजेक्शंस. ये वर्ड्स है जो सडन इमोशंस या सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और उनके आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ हमेशा रहता है, लाइक दिस. ऑलराइट, नाउ मूविंग फर्दर. So today what we will be discussing is person thing error. Errors में we will be discussing person thing error and subject verb error. Person thing error जब आता है तब subject और verb का भी error आता है साथ में sentence में.
This I will explain to you as we move further. Now have a look at these pronouns. Everybody, nobody, somebody, anybody, everything, nothing, something, anything. अब ये सारे जो pronouns है, all these pronouns are absolutely singular. ये सारे pronouns है singular pronouns. You have to keep this in mind. Now there is a little difference between these pronouns. जो भी pronouns में ये body word लिखा हुआ है, all pronouns containing the word body are related to people or living beings. और जो pronouns में ये word thing आता है, it relates to objects या non-living things. इसको हमेशा याद रखना है. जो pronoun में word body आता है, it is related to living beings. और जो pronoun में thing आता है, it is related to objects. और ये सारे pronouns with the word body or thing are all singular pronouns. Moving further. अब जब एक सेंटेंस हम लेते हैं, आई एम अ गर्ल, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आई एम अ गर्ल, तो उसमें आई जो है ये सब्जेक्ट हो गया. और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है. सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है. तो आई जो है ये हो गया सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है. रीटा इज़ अ गर्ल, तो रीटा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया क्योंकि पर्सन का नाम है और रीटा नाउन है, तब भी ये सब्जेक्ट हो गया. सो नाउन या प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट्स में गिने जाते हैं. अब एक रूल है ग्रामर का कि व्हेन अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर, एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल. सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा. ये रूल को याद रखना है. मूविंग फर्दर. जितने भी हम भी अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़े, the 8 parts of speech, out of all those 8 parts of speech, there are only 3 parts of speech which have the characteristic of being singular as well as plural. And what are those? Those parts of speech are nouns, pronouns and verbs. Only these 3 parts of speech, noun, pronoun और verbs, सिर्फ इनको कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं. You need to remember this too. And as I told you earlier, singular plural error is also equals to subject verb error. Singular या plural का error जो sentence में आएगा उसमें subject और verb का error आएगा ही आएगा. Moving further to the examples, let us solve a few examples जिसके आपके सारे doubts clear हो जाएंगे. अब ये पहले सेंटेंस को देखिए. Everybody is /are ready to do his /their work. अब जब भी एग्ज़ाम पेपर में आपको एरर स्पॉट करने के लिए कहा जाएगा तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई के सेंटेंस में एरर कहाँ है. तो क्या होता है कि कभी कभी दे गिव यू वर्ड्स ऐसे ऑब्लिक मार्क्स की तरह ऑब्लिक देते हैं 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स के बीच में. समटाइम्स दे विल अंडरलाइन द वर्ड एंड गिव यू. ओके, समटाइम्स दे माइट जस्ट हाईलाइट, ऐसे हाईलाइट करा हुआ वर्ड मिलेगा, दे विल हाईलाइट द वर्ड एंड गिव यू. एंड समटाइम्स कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं होगा सेंटेंस के अंदर ये सेंटेंस की तरह. सेकंड सेंटेंस को देखो तो इसमें कोई भी मार्क नहीं है. देयर इज़ नो ऑब्लिक, देयर इज़ नो हाईलाइटेड वर्ड, देयर इज़ नो अंडरलाइंड वर्ड. ऑलराइट, द सेंटेंस इज जस्ट गिवन. सो इन दैट केस यू हैव टू डिसाइड कि एरर है या नहीं है. ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट सेंटेंस. एवरीबॉडी इज़ और आर रेडी टू डू हिज और देयर वर्क. अब अगर हम एवरीबॉडी को देखेंगे तो ये सिंगुलर प्रोनाउन है, जैसे ऊपर मैंने लिस्ट में आपको दिया है. एवरीबॉडी इज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन. और प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है, करेक्ट. सो सिंगुलर सब्जेक्ट है
प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है और सिंगुलर है. सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेगा, कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा. तो इज और आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सा है? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑल स्टूडेंट्स, ऑल व्यूअर्स, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इज और आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सा है? यस, यू आर राइट. इज अ सिंगुलर वर्ब. तो हम आर को एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे. एवरीबॉडी इज रेडी टू डू. अब फिर से यहाँ ऑप्शन दिया है हिज और दे आर, ये दोनों प्रोनाउंस है, बोथ आर प्रोनाउंस. हिज जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, दे आर इज अ प्लूरल प्रोनाउन. सो पहला प्रोनाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो सेकेंड प्रोनाउन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा ऑफ कोर्स. तो द करेक्ट आंसर इज हिज. दे आर को हम एलिमिनेट कर देंगे. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी रेड एज एवरीबॉडी is ready to do his work. This is the right answer. All right. Moving on to the second sentence. अब यहाँ पे कोई एरर हाईलाइट नहीं किया गया, कुछ अंडरलाइन नहीं किया गया. Now you have to find out the error. Anybody can do the work if they try. अब ये वीडियो का सबसे मेन एरर क्या मैंने बताया था, सब्जेक्ट वर्ब एरर और सिंगुलर प्लूरल एरर. ओके. तो अब यहाँ पे प्रोनाउन को ले लेते हैं. पहले एनीबॉडी दिया है, एनीबॉडी फिर से सिंगुलर प्रोनाउन है और साथ में ये सब्जेक्ट भी है, राइट. कैन डू द वर्क इफ़ दे ट्राई. अब यहाँ पे वर्ब देखो, वर्ब को ढूंढना है, बिकॉज सब्जेक्ट है तो वर्ब भी होगा. वर्ब इज ट्राई, ये वर्ब है. एक और प्रोनाउन यहाँ पे है, दे. वन मोर प्रोनाउन. पहला प्रोनाउन सिंगुलर है, फर्स्ट प्रोनाउन इज सिंगुलर. So the second pronoun will also be singular, and the verb will also be singular. As per the rule of grammar, singular subject takes a singular verb, plural subject takes a plural verb. Now we need to remember one thing, that whenever a noun is plural, जब noun plural रहेगा तो उसमें s या es हम add करेंगे. Whereas on the other hand, verb का उल्टा हो जाता है. verb जब plural रहता है ना, तो उसमें es या s हम नहीं ऐड करते. तो यहाँ ट्राई में s या es नहीं लगा है, सो इट्स अ प्लूरल वर्ब. तो अब सिंस एनीबॉडी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम वर्ब को भी सिंगुलर बनाएंगे. तो ये y को निकाल के ये हो जाएगा TRIES, ट्राइज. अब हो गया ये सिंगुलर वर्ब. अब यहाँ पे दे बच गया. दिस इज ऑल्सो प्लूरल, वी नीड टू चेंज दैट ऑल्सो. सो वील एलिमिनेट दे and we will write he. Now many students have earlier asked me in my coaching class कि मैम हम he क्यों लगाते हैं जब जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया. then why do we use he, why can't we use she? तो as per the rule of grammar, ध्यान से सुनिए इस रूल को. as per the rule of grammar, when a gender is not specified in a sentence, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, अगर ये नहीं बताया गया, तब हम डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट हम ही को ही यूज़ करते हैं. इट्स बाय डिफ़ॉल्ट. जैसे कि मैथ्स में एक्स इज़ अंडरस्टूड, वैसे यहाँ इंग्लिश ग्रामर में ही इज़ अंडरस्टूड बाय डिफ़ॉल्ट अगर जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड सेंटेंस. होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको यूज़फुल लग रहा है. जिन लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लग रहा है, प्लीज़ टाइप इन द कमेंट्स बिलो यूज़फुल. टाइप यूज़फुल इन द कमेंट्स बिलो. ऑलराइट, कमिंग ऑन टू द थर्ड सेंटेंस. नथिंग बट सम बुक्स वॉज ऑब्लिक वर अवेलेबल. अब यहाँ पे एरर क्या है, कहाँ है? अब यहाँ पे स्ट्रोक दिया है, ऑब्लिक मार्क दिया है वॉज और वर के बीच में. फिर से उठाते हैं नथिंग को, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है. ओके. अब आप यहाँ पे देखेंगे तो नथिंग भी ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करता है, राइट. एज आई टोल्ड यू, जब वर्ड के अंदर प्रोनाउन के साथ थिंग आता है तो ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करता है. और यहाँ पे बुक्स है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, नॉन लिविंग बीइंग. ओके. सो नथिंग बट सम बुक्स. अब वर्ब क्या आएगा, नथिंग तो सिंगुलर प्रोनाउन है. So what will be the verb? Verb also has to be singular as per the subject verb agreement rule. Singular subject takes a singular verb. So which is the singular verb in the third sentence? Type in the comment section below. Which is the singular verb in the third sentence? Was या were? Type the correct answer in the comment section below.
Yes, that's right. Was is a singular verb, so we eliminate were. Were जो है plural verb है. Okay? So the correct answer will be nothing but some books was available. Now many students have asked me, मैम यहाँ तो some books है, तो एक से ज़्यादा बुक्स हो गए तो हम were को क्यों नहीं चूज़ कर सकते, हम was क्यों लेते हैं? सो माई डियर, पहला प्रोनाउन जो है सेंटेंस का वो सिंगुलर है. ओके तो इसीलिए ये was जो है ये पहले प्रोनाउन नथिंग के लिए है, बुक्स के लिए नहीं है. So we always choose the verb as per the first subject. Alright, coming on to the fourth sentence. Now there is a little catch in the fourth sentence. अब यहाँ पे कोई एरर स्पेसिफाई नहीं किया गया, यहाँ नहीं बताया गया है, कोई मार्क्स नहीं दिए हैं, कोई हाईलाइट नहीं, कोई अंडरलाइन नहीं, नो ऑब्लिक मार्क. नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट. नथिंग क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन. अब सिंस इसमें थिंग है तो ये क्या स्पेसिफाई करता है? ऑब्जेक्ट्स. और यहाँ पे एक नाउन क्या है? स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स क्या होता है? लिविंग बींग्स. सो ये पर्सन को स्पेसिफाई कर रहा है, राइट? अब ऑब्जेक्ट और पर्सन दोनों का कंपैरिजन तो हो नहीं सकता, बिकॉज बोथ आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, राइट? अब नथिंग है, पहला प्रोनाउन है, पहला सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो उसके हिसाब से ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट. और ये वॉज भी करेक्ट है, सिंगुलर वर्ब, राइट? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर वर्ब है. नथिंग इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वॉज इज़ अ सिंगुलर वर्ब, दोनों करेक्ट है. तो एरर कहाँ है? अब नो एरर का तो ऑप्शन दिया नहीं है. अगर नो एरर होता तो ऑप्शन होता नो एरर या नो इम्प्रूवमेंट, बट यहाँ पे थोड़ा सा एरर है क्योंकि ये स्टूडेंट्स पर्सन का है एंड नथिंग रिलेट्स टू ऑब्जेक्ट्स, सो वी कैन नॉट कंपेयर द टू थिंग्स. सो इसीलिए यहाँ पे थिंग को हटा के हम बॉडी लगा देंगे, नो बॉडी. सो द करेक्ट आंसर इज, वी रीड द सेंटेंस एज nobody but some students was present. Alright, hope I've made myself clear. सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? Please type in the comment section below. अगर समझ में आ रहा है तो please type in the comment section below yes. Alright, coming on to the fifth and the last sentence of this video. अब ये सेंटेंस को ध्यान से देखना. Every one section of A, the society is feeling. B, the pinch of rising prices and corruptions. C, no error, no improvement. अगर ये सेंटेंस को ध्यान से हम देखें तो इसमें कोई एरर तो लगता नहीं है. कितने बच्चों को एरर लग रहा है इसमें? प्लीज़ टाइप इन द कमेंट सेक्शन बिलो. यस, अगर बच्चों को एरर लग रहा है तो 5 डॉट यस करके लिखो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यस आपको एरर लग रहा है. और जिनको लग रहा है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट, नो एरर, तो 5.c करके लिखो तो समझ में आ जाएगा मुझे. आई नीड टू नो योर ओपिनियन डियर व्यूअर्स. प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑलराइट, लेट्स सॉल्व इट. एवरी वन सेक्शन मतलब हर एक सेक्शन. तो ये हो गया सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट. इज सिंगुलर वर्ब भी हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया. ऑलराइट, एवरी वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड करप्शंस. तो शायद एरर नहीं है, इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, बट देयर इज एन एरर, देयर इज एन एरर. और ये एरर क्या है? एरर यहाँ पे है. अब अगर ध्यान से इसे देखेंगे सेक्शन, तो सेक्शन क्या है? ये नाउन है. कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये नाउन है. और एवरीवन क्या है? एवरीवन तो प्रोनाउन है. और एज पर द रूल ऑफ ग्रामर, नाउन के पहले कभी भी प्रोनाउन नहीं आएगा. आई रिपीट, एज पर द रूल ऑफ ग्रामर, यू कैनॉट प्लेस अ प्रोनाउन बिफोर अ नाउन. देयर ऑलवेज हैज़ टू बी एन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन. ओके, सो हम यहाँ से वन को निकाल देंगे और बचेगा सिर्फ एवरी. अब ये सही है, एवरी एडजेक्टिव है. एवरी इज एन एडजेक्टिव. नाउ इट्स राइट. अब इसको पढ़ो. एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड करप्शंस. ओके, सो ये सी वाला ऑप्शन जो है
ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस में एरर है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, यू वांट टू नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो you can WhatsApp me on my number. My number is given in the description below. I'd like to inform my viewers that I am a professional and highly experienced faculty for English subject. I coach students as well as adults for Basic English, which is also known as English grammar, spoken English, which is also known as English conversation या conversational English, and English for all kinds of competitive exams including the CET exam. I also conduct home tuitions. जिनको अपने घर पे पढ़ना है मैं वहाँ जाके भी सिखाती हूँ. I also conduct coaching classes at my location, which is in Mumbai. So जो लोग मेरे classes ज्वाइन करना चाहते हैं या होम ट्यूशन्स लेना चाहते हैं, मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सअप करें फर्दर डिटेल्स के लिए. मेरा नंबर है 9167903377. आई रिपीट, नीचे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी है. आई रिपीट द नंबर 9167903377. अगर ये वीडियो यूज़फुल या अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट. खासकर वो स्टूडेंट्स बेनिफिट कर सके जो कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते किसी वजह से. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो.